Hello students, in this video we are going to cover up the chapter number 10 of your English course book, that is A Strange Transformation. A Strange Transformation is an excerpt taken from a novella, that is The Metamorphosis, written by Franz Kafka. You can see the picture of Franz Kafka on the screen here. Franz Kafka, born on 3rd July 1883 and died on 3rd June 1924, was a German-speaking Bohemian novelist and short story writer, widely regarded as one of the major figures of 20th century literature. So Franz Kafka is known for his Bohemian style of writing the novels and the short stories. Bohemian का मतलब होता है to write something unconventional than what is going on in the society. ठीक है, कुछ अलग लिखना जो सोसाइटी में नहीं चल रहा, या सोसाइटी में जो नॉर्मल जो एक नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, उस नॉर्मल नॉर्म्स से थोड़ा हट कर लिखना. ठीक है, और बोहेमियन इज़ अ काइंड ऑफ लिबरल्स थिंकिंग. ठीक है, तो उस तरह की सोच को वो लिखते थे, उस तरह की सोच की नॉवेल्स लिखते थे वो. तो दिस इज बोहेमियन इन सिंपल टर्म्स. मेटामॉर्फोसिस, हिज नॉवेल, इज वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1915. मेटामॉर्फोसिस जो है उनका सबसे फेमस वर्क में से एक है जो 1915 में पब्लिश हुआ था. Metamorphosis tells the story of a salesman, Gregor Samsa. यहाँ पे सबसे मेजर कैरेक्टर जो है वो ग्रेगोर सैम्सा है. देर आर सम मोर कैरेक्टर्स बट वी आर नॉट कंसर्न विद दोज कैरेक्टर्स बिकॉज दोज कैरेक्टर्स आर नॉट कवर्ड इन योर चैप्टर. सो ग्रेगोर सैम्सा इज द मेन कैरेक्टर हियर एंड ही इज़ अ सेल्समैन. वो एक सेल्समैन है, किसी कंपनी में एक सेल्समैन का काम करता है वो. ठीक है, और वॉट हैपन्स वन डे ही वेक्स अप फ्रॉम हिज स्लीप and what he noticed that he himself is completely changed. His body is completely transformed. He has become a huge insect now from a boy or a man, subsequently struggling to adjust to his new condition. And now what he have to do, he do not have any option because he has now transformed, and only thing that he can do now is adjust with what he have now. ठीक है, and through this story Franz Kafka is somewhere dealing with the question of identity. Question of identity means that you are questioning your own identity. That means आप अपने आप से पूछते हो कि आप कौन हो, and at the end or in the end you have to accept whatever you are. आप जो भी हो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आपको उसके चीज़ के साथ ही जीना पड़ता है. आप जैसे भी हो आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा. ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं ये क्यों नहीं हूँ. ठीक है, सपोज कोई इंसान है वो अपने कॉम्प्लेक्सन को लेकर परेशान है, बट वॉट ही कैन डू विद इट, ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. एंड सो वॉट ही हैव टू डू, ही जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ एज ही इज़ और शी इज़ एज शी इज़. So that is called question of identity. You have to accept whatever you are. You have to accept how you look, how you feel, how you walk, how you speak, and those all are your identity, and you have to accept your identity. This is the thing that Franz Kafka is here dealing with through this story, where a salesman, Gregor Samsa, has now become an insect, and that too a big insect. And now he have to adjust with whatever he is. Okay, so this chapter is about this particular concept. So we'll go straight to the chapter and we'll see what actually it is. So this is our chapter, A Strange Transformation. Okay, so first of all we should see this concept, metamorphosis. What is metamorphosis? Metamorphosis का मतलब होता है a kind of transformation. In a simple word, we should say the process of transformation. Okay, this process of transformation happens in some insects and animals throughout their life. Okay, so there is a life cycle of here is the example is given on, and that example is of a butterfly.
A butterfly, how the metamorphosis, a life cycle of a butterfly is, ठीक है, and that is called metamorphosis. The process of transformation throughout life is the metamorphosis, and the butterfly's metamorphosis or process of transformation is that you can see in the picture. The first of all, the butterfly is in the form of egg. You can see here, ये एक egg की तरह है, and then this egg it gives birth to this caterpillar that you can see. larva इसको कहा जाता है और caterpillar भी कहा जाता है. आपने caterpillar देखा होगा, ठीक है, पत्तों के ऊपर चलते हुए, फूलों के ऊपर चलते हुए, जनरली पत्ते खाते हैं ये caterpillars जो होते हैं. And then this caterpillar goes into a transformation and transforms into a pupa, ठीक है, and it transforms into a pupa and it covers itself with a hard shell. एक तरह का हार्ड शेल होता है, उसमें वो अपने आप को कवर कर लेता है ये कैटरपिलर, और ये एक लॉन्ग स्लीप में चला जाता है, मतलब सो जाता है काफ़ी समय के लिए. एंड देन व्हेन दिस प्यूपा ब्रेक्स, जब ये प्यूपा टूटता है, देन इस प्यूपा के अंदर से वापस क्या निकलता है, एक बटरफ्लाई निकलता है. मतलब एक एग एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक लार्वा एक कैटरपिलर बनता है, एंड देन दिस कैटरपिलर गोज इनटू ट्रांसफॉर्मेशन बाय गेटिंग इटसेल्फ कवर्ड इनसाइड अ प्यूपा, ठीक है. एंड व्हेन दिस प्यूपा ब्रेक्स, दिस कैटरपिलर हैज नाउ फॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विथ विंग्स, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. दिस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ, or this changes that takes place throughout the life is metamorphosis. Okay, so this transformation is basically called metamorphosis. Now, as I have said that this chapter, or strange transformation, is adapted from a novella, that is the Metamorphosis. It's a novella. Okay, what is novella? Novella means a short novel. Okay, so this metamorphosis, the metamorphosis is a short novel, and this chapter, a strange transformation, is adapted from this novella. And here Franz Kafka is dealing with the question of identity in this story. So we'll be reading the paragraph and we'll be decoding it, the meaning, ठीक है, line by line. So let's start. One morning, as Gregor Samsa was waking up from Ansis' dream, he discovered that in bed he had been changed into a monstrous verminous bug. तो एक सुबह जब ग्रेगोर सैम्सा उठ रहा था अपनी एक एंसियस ड्रीम से, एंसियस मतलब होता है यहाँ पे डरावना एक सपना वो देख रहा था. उस सपने से जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो बेड में लेटा हुआ है, और what he is seeing that he is transformed, he is changed into a monstrous verminous bug. verminous मतलब होता है कि इंसेक्ट जो किसी एनिमल और किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी पे रहकर वहाँ से फीड करता है. बेसिकली वो खून चूसता है और किसी एनिमल के ऊपर भी वो चिपका रहता है बॉडी के ऊपर में. तो इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं उनको वर्मिनियस कहा जाता है. और वो देखता है कि वो अपने आप को देखता है दैट ही इज़ now changed into this verminous bug, and that too it is monstrous. Monstrous means huge. Okay, so now he is huge and he is a bug. He lay on his armored hard back and saw, as he lifted his head up a little, his brown arched abdomen divided into rigid bow-like section. For this, I will be referring a picture here on the screen. In this picture, you can see that this insect is having a armored hard back. मतलब उसका जो बैक है बहुत हार्ड है, एक आर्मर की तरह. जैसे आर्मर मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आप जो लड़ाई करते वक्त किसी तरह का एक शील्ड यूज़ करते हो प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, दैट इज़ कॉल्ड आर्मर्ड. तो या फिर आप जो ड्रेस पहनते हो जो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, उसको भी आर्मर कहा जाता है. बेसिकली यहाँ पे आर्मर का मतलब है हार्ड. तो उसका जो बैक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, दैट्स यू कैन सी इन द पिक्चर. और उसका जो एब्डोमिनल एरिया है, मतलब उसका जो चेस्ट के नीचे का जो एरिया है, जिसको पेट का जो हिस्सा होता है, जो स्टमक का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को बोलते हैं एब्डोमेन. तो एब्डोमेन का जो हिस्सा है वो एक रिजिड बो की तरह डिवाइडेड है.
बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस में, ठीक है। तो दिस यू कैन सी इन द पिक्चर, फ्रॉम दिस हाइट एंड ब्लैंकेट जस्ट अबाउट रेडी टू स्लाइड ऑफ कम्प्लीटली। उसकी बॉडी जो है अब बेसिकली देखा जाए तो एक ओवल बॉडी बन चुका है, वो अब बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है। उसके दो रिजिड हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, ओके। तो नाउ व्हाट हैपन्स, इसकी जो बॉडी है पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जैसे एक इंसेक्ट की होती है, ठीक है, एक सर्कल की तरह इसकी जो बॉडी है वो इलेप्टिकल शेप में बन चुकी है। एंड नाउ फ्रॉम दिस हाइट, उसका जो हाइट है, उसके जो शेप है बॉडी की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लैंकेट है वो भी अब फिसल कर नीचे गिर रहा है। कुड हार्डली स्टे इन प्लेस, मतलब उसका जो ब्लैंकेट है जिसको कवर करके सो रहा था, वो ब्लैंकेट भी अब उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से नीचे गिर रहा है। His numerous legs, pitifully thin in comparison to the rest of his body, flickered helplessly from his eyes. और जो उसके legs हैं वो बहुत सारे पतले छोटे legs हैं। एक ह्यूमन बींग का लेग कितना होता है, सिर्फ 2 ही legs होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। लेकिन ये जो इंसेक्ट जिसमें वो कन्वर्ट हो चुका है, उसके बहुत सारे छोटे legs हैं, और भी बहुत छोटे पतले से उसके पैर हैं, ठीक है। और स्पेशली जब वो अपने बॉडीज को कंपेयर करता है तो, ठीक है, और इतने उसके जो पैर हैं वो छोटे जो पैर हैं वो हिल रहे हैं, ठीक है, इट इज़ फ्लिकरिंग, वो छोटे जो पैर हैं वो हिल रहे हैं बार बार, ठीक है। एंड ही कैन सी इट। व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, ही थॉट, इट वाज नो ड्रीम। His room, a proper room for a human being, only somewhat too small, lay quietly between the 4 well-known walls. Above the table, on which an unpacked collection of sample goods was spread out. Samsa was traveling salesman, hung the picture which he had cut out of an illustrated magazine a little while ago and set in a pretty frame. Now what he is observing, that he thinks what has happened to him, वो क्या हो गया उसके साथ में, वो सोचता है। And then he thinks, no, this what I am observing is not a dream. Why it's not a dream? Because he's looking at the room in which he is in, and he sees that everything is as it was before he went to the sleep, ठीक है, and it is his room, वो उसी का रूम है। वो सब कुछ जो वो रूम में देख रहा है, सब कुछ जो है वो उसी प्लेस पे रखा हुआ है जिस प्लेस पे सारी चीज़ें रखी हुई थी, ठीक है। सब कुछ रूम में सब कुछ वैसे ही अरेंज्ड है जैसे सब कुछ पहले से अरेंज था। दैट मीन्स ही इज़ टेलिंग दैट दिस रूम इज़ वेल नोन टू हिम। वो पूरी तरीके से इस रूम को जानता है, इस रूम को वो पहचानता है, और वो जानता है कि ये रूम मेरा ही है। एंड इसी वजह से वो सोचता है कि नो, इट कैन नॉट बी अ ड्रीम। His room is proper room for human being, and he is looking at the walls and he is seeing that the wall is the wall that he knows, and this walls belongs to his room. Above the table on which an unpacked collection of sample goods was spread out. और फिर वो बोलता है कि जो टेबल पे कुछ अनपैक्ड सैम्पल क्लोथ्स रखे हुए हैं वो भी मैं पहचानता हूँ, ठीक है। और जो दीवारों पे जो पिक्चर्स टंगे हुए हैं, जिसको अभी मैंने एक मैगज़ीन से काट के उसे फ्रेम करके वहाँ लगाया था, वो भी बिल्कुल वैसे ही वहाँ दीवार पे लगा हुआ है। दैट मीन्स वो बोल रहा है कि वो पूरी तरीके से रूम को पहचानता है और ये रूम उसी का है और ये सपना नहीं है। Gregor's glance then turned to the window. The dreary weather, the raindrops were falling audibly down on the metal window ledge, made him quite sad. Then what Gregor's sadness saw, he glanced at the window. उसने विंडो की तरफ देखा, एंड जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश की मौसम है, और जो रेन ड्रॉप्स हैं वो देख रहा है वो कि वो विंडो की जो एज है उस पर पड़ रहा है, उसको आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं उस रेन की। एंड नाउ ही इज़ सैड। वाई ही इज़ सैड विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। Why don't I keep sleeping for a little while longer and forget all these foolishness, he told himself. But this was entirely impractical, for he was used to sleeping on his right side, and in his present state he couldn't get himself into this position.
No matter how hard he threw himself into his right side, he always rolled again onto his back. Now what happens, he thought for a while that I should go to the sleep and forget this all foolishness. उसको अभी भी लग रहा है कि मुझे ये जो foolishness जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, इसे मैं वो भूल जाना चाहिए और मुझे थोड़ा और सो लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. ही इज़ थिंकिंग, ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात कर रहा है और सोच रहा है कि मुझे अभी और सोना चाहिए. बट इट वॉज नॉट गोइंग टू हैपन, इट वॉज नॉट गोइंग टू हैपन एटलीस्ट प्रैक्टिकली, बिकॉज उसका जो बॉडी शेप है जो कन्वर्ट हो चुका है, वो इंसेक्ट बन चुका है, उस वजह से वो अब अपनी साइड्स को चेंज नहीं कर सकता. जैसे हम सोते वक्त साइड्स चेंज करते हैं, आइदर ऑन द लेफ्ट आइदर ऑन द राइट साइड, ठीक है, वी स्लीप जनरली ऑन द आइदर ऑफ द साइड्स. तो यहाँ पे वो साइड्स पे नहीं सो सकता. जनरली उसको राइट साइड में सोने की आदत है, ठीक है, बट वो यहाँ राइट साइड में नहीं सो सकता बिकॉज उसका जो बॉडी है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसको अलाउ नहीं करता. जैसे ही वो राइट की तरफ मुड़ता है, उसका बॉडी वापस से घूम कर उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में वो पहले से था, ठीक है. तो दिस वॉज द रीज़न एंड ही ऑलवेज रोल्ड अगेन टू हिज बैक. वो हमेशा अपने बैक पे वापस आ जाता है. सो इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट ही इज़ गोइंग टू स्लीप अगेन, ठीक है. सो he must have tried it 100 times, closing his eyes so that he would not have to see the wriggling legs, and gave up only when he began to feel a light, dull pain in his sides, which he had never felt before. So उसने काफ़ी बार कोशिश किया कि वो सोए, आँख बंद करके उसने कोशिश किया, उसने अपनी साइड्स भी बदलने की कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था. एंड ही वॉज जस्ट अवॉइडिंग हिज रिंगलिंग लेग्स. उनके जो लेग्स थे, उनके जो छोटे छोटे पतले पतले लेग्स थे, उनको वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हिल रहे थे, मूव कर रहे थे. तो व्हाट ही वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज अवॉइडिंग द लेग्स, द रिंगलिंग लेग्स, एंड ही wanted to sleep, but no, it was not possible, and he was now feeling a light dull pain. अब उसके बॉडी में कुछ थोड़ा दर्द होने लगा था, पेन होने लगा था, बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस ट्राइंग ऑफ गेटिंग ऑन द साइड्स, ठीक है. तो जो दैट बार बार जो साइड्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज नाउ स्टार्टेड टू फील द पेन, ठीक है, ऑन इन हिज बॉडी दैट ही हैज़ नेवर फेल्ट बिफोर, ठीक है. एंड नाउ, oh God, he thought, what a demanding job I have chosen, day in, day out on the road. The stresses of trade are much greater than the work going on at head office. And in addition to that, I have to deal with the problems of traveling. The worries about train connections, irregular bad foods, temporary and constantly changing human relationships, which never come from the heart. To hell with it all. He felt a slight itching on the top of his abdomen. He slowly pushed himself on his back closer to the bedpost so that he could lift his head more easily, found the itchy part. Now what he is thinking to himself is that what a demanding, he's actually talking about his job, what he's doing, ठीक है, what he do generally, ठीक है, that he is a salesman. And that is what he is talking about here. तो what a demanding job I have chosen. मैंने कितना एक डिमांडिंग जॉब चूज़ किया है. मतलब पूरे दिन बस इधर से उधर रोड पे घूमते रहना, ठीक है, ऊपर से एक ट्रेड का स्ट्रेस, जो बेचना है, खरीदना है, उसका स्ट्रेस, ठीक है, एंड मच ग्रेटर दैट गोइंग टू द हेड ऑफिस, ठीक है, एंड then dealing with the problems of traveling, like connecting trains and missing trains, and मतलब ट्रेन को आप मिस कर देते हो, फिर दूसरा ट्रेन आएगा, आप वेट करते हो. दिस आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस जनरली वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है. तो दिन भर अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इरेगुलर फूड मिलता है, खाने को समय पे नहीं मिलता, जब समय मिल रहा है तब खा रहे हो. दीज आर द प्रॉब्लम दैट अ सेल्समैन जनरली फेसेस. तो इसी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ बेसिकली बात की गई है. ह्यूमन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स कहने का मतलब ये है कि आपके कोई कांस्टेंट फ्रेंड नहीं होते, बिकॉज आप एक जगह पे रहते नहीं हो, आपके जो प्लेस है चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से लोग भी चेंज होते रहते हैं. तो ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो भी कुछ खास कांस्टेंट आपके लाइफ में नहीं रहता.
And these all comes not from the heart. They do not come from the heart. He do not want to do this job, but he is doing it. Why he is doing it? Because there is some reason that is compelling him to do this job, even though he do not like this job. ठीक है, to hell with it all, he felt, मतलब ये सब चीज़ छोड़ो. अब now what he is feeling a itching on his abdomen area. अपने एब्डोमेन मतलब अपने पेट के आसपास, उसके स्टमक के आसपास कहीं उसको एक खुजली सी हो रही है. एंड नाउ ही स्लोली पुश्ड हिमसेल्फ ऑन हिज बैक. वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे करता है और ही गेट्स क्लोज टू द बेड पोस्ट. बेड पोस्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि बेड के किनारे जो एक जगह होता है, ठीक है, जहाँ पे आप कई बार पिलो टिका कर बैठ जाते हो, दैट इज़ द बेड पोस्ट एरिया. तो वो उस जगह पे जाता है अपने आप को लिफ्ट करके, एंड देन वहाँ पे वो बैठता है और वो खोजता है कि उसको खुजली कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है. तो ही इज़ एक्चुअली फाइंडिंग द इची पार्ट ऑफ हिज एब्डोमेन. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, which was entirely covered with small white spot. He did not know what to make of them and tried to feel the place with a leg, but he retracted it immediately, for the contact felt like a cold shower over him. तो he was cold, मतलब जो insects होते हैं उनकी जो body होती है वो cold होती है, ठीक है. तो वो अपने पैरों से उस खुजली वाले एरिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट उसको एक्चुअली मिला नहीं. एंड देन ही वॉज टायर्ड ऑफ फाइंडिंग इट एंड देन ही लेफ्ट इट. रिट्रैक्ट मतलब होता है गेट बैक, पीछे हट जाना, अपनी जो भी आप कर रहे हो उससे पीछे हट जाना. तो वो अब हार मान चुका है एंड देन ही लेफ्ट इट. देन ही स्लिड बैक अगेन इनटू हिज अर्लियर पोजीशन. फिर वो वापस उसी पोजीशन में आ गया जैसे कि जब वो अपने बेड पोस्ट की तरफ जा पीछे चला गया था, उठकर थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप को लिफ्ट करके ताकि वो देख सके. लेकिन अब वो फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, बिकॉज ही फेल्ड व्हाट ही वांटेड टू डू इन, ठीक है. दिस गेटिंग अप अर्ली ही थॉट मेक्स अ मैन क्वाइट इडियोटिक. नाउ ही इज थिंकिंग कि मैं शायद ठीक से सोया नहीं हूँ, जल्दी उठ गया हूँ, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें सोच रहा हूँ या फील कर रहा हूँ. मैन मस्ट हैव ए स्लीप. जो एक इंसान है उसको समय निकाल कर कम से कम प्रॉपर एक स्लीप लेना चाहिए. इफ़ आई डिडंट होल्ड बैक फॉर माई पेरेंट्स सेक आई वुड हैव क्विट एजेस अगो. अगर मैंने अपने पेरेंट्स की चिंता मुझे नहीं होती, अपने पेरेंट्स की हेल्प मुझे नहीं करनी होती, तो मैंने ये जॉब काफ़ी साल पहले या कभी छोड़ दिया होता, कितने ही समय पहले छोड़ दिया होता. मतलब उसकी जो मजबूरी है वो है उसके पेरेंट्स को कुछ तो उसको हेल्प करना है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग दिस जॉब. आई वुड हैव गॉन टू द बॉस एंड टोल्ड हिम जस्ट वॉट आई थिंक अबाउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. मैं अपने बॉस के पास जाता और सीधा जाके बोल देता कि मुझे ये जॉब नहीं करना है और मैं अपने दिल से क्या फील करता हूँ इस जॉब के बारे में. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है और आई एम डूइंग दिस जॉब फॉर माई पेरेंट्स सेक. ही वुड हैव फॉलन राइट ऑफ हिज डेस्क. वो जब मैं ऐसा बोलता तो ऑब्वियसली मेरा जो बॉस था वो ये बात सुनकर क्या होता, अपने डेस्क से गिर जाता, ठीक है. एंड हाउ वियर्ड इट इज़ टू सेट अप एट द डेस्क एंड टॉक डाउन टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम वे अप देयर. ठीक है, कितना वियर्ड लगता है ये कि एक जो बॉस है वो डेस्क पे बैठ के क्या कर रहा होता, मतलब एक अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है नीचे झुक के. तो ये बहुत बुरा लगेगा देखने में. द बॉस इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग एंड सो एन एम्प्लॉय हैज़ टू स्टेप अप quite close to him. Anyway, I haven't completely given up that hope yet. ठीक है, तो जो बॉस है उसके वो थोड़ा कम सुनने में, थोड़ा उनको सुनाई कम देती है. तो उनके जो एम्प्लॉई हैं जब उनसे कुछ बोलना होता है तो उनके पास जाकर उनको बोलना होता है. तो ये अपने बॉस के बारे में ऐसे बताया हुआ है. Anyway, I haven't completely given up that hope yet. वो बोलता है कि मैं फिर भी अभी तक अपनी होप नहीं खोया हूँ. And I think I have to do this job once I have got together the money to pay off my parents' debt to him. Now it is revealed, it is said that उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कोई डेट है, उनका कोई कर्ज है जो उसको कंप्लीट करना है, उसको पे ऑफ करना है. एंड सो ही इज़ डूइंग दिस जॉब.
एक बार जब वो अपने पेरेंट्स के जितने भी जो पैसे हैं वो जब किसी को देने हैं वो दे देगा, उसके बाद इसको ये जॉब नहीं करना पड़ेगा और उसमें कुछ 5 से 6 साल लगने वाले हैं. दैट शुड टेक अनदर 5 or 6 years. I will do it for sure and then I will make the big break. Then he is saying एक बार मेरा वो डेट पूरा हो जाए तब मैं ये जॉब छोड़ दूंगा. एंड इन एनी केस राइट नाउ आई हैव टू गेट अप एंड माई ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock. सो अभी तो फ़िलहाल मुझे अपने इस बेड से उठना है और ट्रेन में जाना है, बिकॉज ट्रेन जो है वो 5 o'clock पे छूटती है स्टेशन से. तो मेरे को वो ट्रेन पकड़नी है ताकि मैं समय पे अपने जॉब पे पहुंच सकूं. लेकिन देखते हैं क्या होता है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ मैन एनी मोर, ही इज़ ए इंसेक्ट एंड that would be the struggling part that he is now going to face. And he looked over at the alarm clock ticking away from the chest of drawers. ठीक है, उसने फिर अलार्म क्लॉक को देखा जो ड्रॉवर पे रखा हुआ है. एंड गुड गॉड ही थॉट इट वॉज 6:30. मतलब 6:30 में 6:30 बज चुके हैं, 6:30 हो चुका है. एंड द हैंड वर गोइंग क्वाइटली ऑन एंड हैंड्स वर गोइंग, मतलब हैंड्स जो हैं घड़ी के वो चल रहे थे. कुड द अलार्म हैव फेल्ड टू रिंग? वन सॉ फ्रॉम द बेड दैट इट वॉज प्रॉपरली सेट फॉर 4 o'clock. सडनली इट हैड रंग. तो फिर वो सोचता है कि क्या अलार्म नहीं बजा, अलार्म क्लॉक में कुछ फॉल्ट है. बट फिर वो देखता है कि नहीं, जो घड़ी है वो चल रही है, घड़ी पे जो अलार्म लगा हुआ है वो 4 बजे का ही लगा हुआ है. वो दूर से ही देख रहा है एंड ही इज सीइंग एट इट. And he is seeing that alarm is at proper place, alarm is has set properly, and the alarm clock has not failed to ring. It had rung. Now, yes, but was it possible to sleep through the noise that made the furniture shake? लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो वो अलार्म जब बजा होगा इतना तेज़ बजता है वो कि फर्नीचर पूरा हिल जाता है, ऐसे आवाज़ में मैं उठा नहीं, मैं सोया रह गया. नाउ इट्स ट्रू ही हैड नॉट slept quietly, but evidently he had slept all the more deeply. Still, what should he do now? The next train left at 7 o'clock. To catch that one, he would have to go in a mad rush. Now he is thinking, that completely or evidently has proved that he has slept well that night. इतना तो पक्का है कि क्योंकि उसको अलार्म सुनाई नहीं दिया, दैट मीन्स वो सोया तो बहुत अच्छे से था. ये तो नहीं बोल सकते कि उसने वो सोया नहीं था. इट इज़ ट्रू दैट ही हैड नॉट, नाउ इट इज़ ट्रू दैट ही हैज़ नॉट स्लेप्ट क्वाइटली, बट एविडेंटली ही हैड स्लेप्ट ऑल द मोर डीपली. ठीक है. द सैम्पल कलेक्शन वॉजंट पैक्ड अप येट. जो सैम्पल कलेक्शन जिसको लेके उसको जाना था अपने ऑफिस या सेल्स की, वो भी अभी तक कम्प्लीटली पैक्ड नहीं है. एंड ही रियली डिडंट फील पर्टिकुलरली फ्रेश एंड एक्टिव. और उसको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो उठ के जाए वहाँ से और पैक करे और निकले. एंड इवन इफ ही कॉट द ट्रेन देयर वॉज नो अवॉइडिंग अ ब्लो अप विद द मैनेजर. मतलब अगर वो किसी तरह ट्रेन पकड़ भी ले, ठीक है, जो 7 o'clock पे है, वो ट्रेन अगर वो पकड़ भी ले तो भी कहीं ना कहीं वो लेट हो जाएगा और उसकी मैनेजर, उसका जो मैनेजर है वो उसको डांटने वाला है. ठीक है. सो एज ही वॉज थिंकिंग ऑल दिस ओवर इन द ग्रेटेस्ट हेस्ट विदाउट बीइंग एबल टू मेक द डिसीजन टू गेट आउट ऑफ बेड, द अलार्म क्लॉक वॉज इंडिकेटिंग एग्जैक्टली 7:15. देयर वॉज अ कॉशियस नॉक ऑन द डोर बाय द हेड ऑफ द बेड. ओके. तो यहाँ पे क्या है कि वो कोशिश कर रहा है, ही वॉज थिंकिंग ऑल ओवर टू इन द ग्रेटेस्ट हेस्ट, मतलब वो जल्दीबाजी में है, हड़बड़ी में है, वो सोच रहा है, उठ रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, विदाउट बीइंग एबल टू मेक द डिसीजन टू गेट आउट ऑफ द बेड. लेकिन अभी भी वो सोच रहे हैं कि मैं उठूँ नहीं उठूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा उसको, बिकॉज अब टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि 7 o'clock पे ट्रेन है. एंड जो वॉच है, जो क्लॉक है, जो अलार्म क्लॉक जो टेबल पर रखा हुआ था, उसमें जो वो टाइम देखता है तो वो देखता है कि इट इज़ ऑलरेडी 7:15. 7:15 मतलब कि अभी 6:45 हो चुके हैं. 7:15 का मतलब होता है 6:45. 7:15. ठीक है. दैट मीन्स द टाइम इज 6:45. ठीक है. तो
7 बजने में अभी 15 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब उसके पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए और वो अभी बेड से उठा भी नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, ठीक है। ग्रेगोर अ वॉइस कॉल्ड, क्योंकि उसी समय क्या होता है, एक नॉक बजता है, एक मतलब डोर पे एक नॉक करने की आवाज़ आती है, कोई खटखटा रहा है डोर पे, एंड द वॉइस कम्स, ग्रेगो अ वॉइस कॉल्ड एंड इट वॉज हिज मदर। वो कौन था, उसकी मदर की आवाज़ थी, उसकी मदर को बुला रही हैं, ग्रेगो इट इज़ 6:45, मतलब 6:45 हो चुके हैं, क्या तुमको जाना नहीं है, डोंट यू वॉन्ट टू बी ऑन योर वे, ठीक है। द ग्रेगोर वॉज स्टार्टल्ड when he heard his voice answering. It was clearly and unmistakably his earlier voice, but in it was intermingled as if from below a painful squeaking. ठीक है, तो वो खुद अपनी आवाज़ सुनकर बहुत स्टार्टल हो जाता है जब वो वापस रिप्लाई करता है अपने माँ को कि यस आई वांट टू गो, बट उस जगह पे जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ को वो खुद सुनकर बहुत ज़्यादा स्टार्टल हो जाता है, मतलब सरप्राइज हो जाता है। उसकी आवाज़ जो थी वो पहले वाली आवाज़ ही थी, लेकिन उसमें आवाज़ में एक पेन था, एक दर्द था, ठीक है, एक तरीके का, एंड ही वॉज सरप्राइज टू हियर दैट। Gregor wanted to answer in detail and explain everything, but in these circumstances, he confined himself to saying, actually, yes, thank you, mother, I am getting up right away. ठीक है, तो ग्रेगोर अपनी मदर को आंसर करना चाहता था, लेकिन इस सिचुएशन में ही वॉज नॉट एबल टू आंसर इट, ठीक है, वो आंसर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। वो बोलना चाहता था अपने मदर को कि एक्चुअली यस आई थैंक यू, यस कि मुझे जगाने के लिए, मुझे बोलने के लिए, यस आई वॉन्ट टू गो, यस आई एम गेटिंग रेडी, दैट इज़ वॉट ही इज सेइंग टू हिज मदर। एक्चुअली ही इज़ नॉट सेइंग, ही इज थिंकिंग दैट ही वुड हैव सेड, बट ही इज़ नॉट सेइंग टू हिज मदर बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू से, ठीक है, और ही इज़ नॉट इन द पोजिशन टू से, okay. Then it was very easy to throw aside the blanket. He needed only to push himself up a little and it fell by itself. जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ब्लैंकेट था वो खुद ही गिर रहा था, तो ब्लैंकेट हटाना was not a big deal. ब्लैंकेट को थोड़ा सा पुश किया और ब्लैंकेट जो है वो अपने आप ही नीचे गिर गया, बट टू कंटिन्यू was difficult. कंटिन्यू मीन्स अब आगे बढ़ना, मतलब बेड से नीचे उतरना was a problem. वो कैसे बेड से नीचे उतरेगा, क्योंकि उसके पास एक ह्यूमन बीइंग की तरह हैंड और लेग तो है नहीं जिससे वो खुद की अपनी बॉडी को पुश कर सके। उसके पास पतले पतले बहुत सारे छोटे छोटे लेग्स हैं, उस लेग से वो अपनी बॉडी को, इतनी भारी बॉडी को, अपनी इतनी बड़ी बॉडी को उठा नहीं सकता, ठीक है। तो बट टू कंटिन्यू वॉज डिफिकल्ट एंड पर्टिकुलरली बिकॉज ही वॉज सो अनयूजली वाइड, दैट इज़ वॉट आई सेड, कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, अनयूजेबली बड़ा था, मतलब जनरली इतने बड़ा कोई भी इंसेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ही नीडेड आर्म्स एंड हैंड्स टू पुश हिमसेल्फ अपराइट। उसके पास हाँ आर्म्स नहीं थे, हैंड्स नहीं थे, वो कैसे अपने आप को उठाता अपनी बॉडी को, इतनी बड़ी बॉडी को। इंस्टेड ऑफ दीज हाउएवर ही हैड ओनली many small limbs which were moving continuously with very different motions and which in addition he was unable to control, ठीक है। तो उसके limbs भी छोटे छोटे जो उसके हाथ पैर जो भी थे वो इतने सारे छोटे छोटे थे कि उसमें, और वो इस तरीके से मूव कर रहे थे अनकंट्रोलेबली, उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता था वो कंटिन्यूसली, बट उसके अंदर इतना पावर नहीं था कि वो उसकी बॉडी को उठा सके। So if he wanted to bend one of them, the first limb extended itself, and if he finally succeeded doing with this limb what he wanted, in the meantime, all the other, as if left free, moved around in an excessively painful agitation. मतलब अगर वो किसी तरह से एक लिम्ब को एडजस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करे भी, ठीक है, तो एक लिम्ब को अगर वो बेंड करने की कोशिश करे भी, तो जो बाकी लिम्ब जो बचते थे वो क्या करते थे, अपनी जगह पे फ्रीली मूव करते थे, ठीक है। और किसी तरह से अगर वो किसी तरह उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या होता था, वहाँ पे एक काफ़ी दर्द होता था उसको, है ना। तो जो उसके लिम्ब थे वो पेन करता था उसमें। बट आई मस्ट नॉट स्टे इन बेड यूजलेसली, सेड ग्रेगोर टू हिमसेल्फ। लेकिन बेड कहीं ना कहीं ग्रेगोर को ये पता था कि उसको बेड पे नहीं रहना है, ही हैव टू लिफ्ट हिमसेल्फ एंड गो, ठीक है, टू द जॉब। As Gregor was in the process of lifting himself half out of the bed, it struck him how easy
all this would be if someone were to come to his aid. Now, quite apart from the fact that the door were locked, should he really call out for help? तो ग्रेगोर अब सोचता है कि अपने आप को उठाते हुए कोशिश करते हुए सोचता है कि काश ऐसा होता कि कोई मुझे यहाँ पर हेल्प करने आता, ठीक है, लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द डोर इज़ लॉक्ड, जो डोर है वो लॉक्ड है, तो किसी को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है. Then there was a ring at the door of the apartment. That's someone from the office, he told himself. तो उसी समय क्या होता है कि डोर पे, जो मेन अपार्टमेंट है, जो घर है, घर का जो डोर है, मेन डोर, वहाँ पे एक रिंग बजता है, डोर बेल बजता है. एंड वो खुद से बोलता है कि पक्का कोई ऑफिस से आया होगा, ठीक है. दे एरेंट ओपनिंग, ग्रेगोर सेड टू हिमसेल्फ. मतलब वो लोग जो, मतलब घर में और लोग हैं, जो और लोग हैं, मतलब मदर एंड और, ठीक है, अदर कैरेक्टर्स, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो गेट नहीं खोल रहे हैं. ग्रेगोर अपने आप से बोलता है, कॉट अप इन सम एब्सर्ड होप, ठीक है, वो उठने की कोशिश करता है. बट ऑफ कोर्स देन एज यूजुअल द सर्वेंट गर्ल विथ हर फर्म ट्रेड वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट. जो फिर उसके बाद उसको पता चल जाता है कि हाँ, समवन वेंट टू द डोर एंड देन ओपनड इट. तो जो सर्वेंट गर्ल है वो जाती है वहाँ पर, वो दरवाज़ा खोल देती है. Gregor needed to hear only visitors' first word of greeting to recognize immediately who it was the manager himself. तो ग्रेगोर को ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी. ग्रेगोर को बस एक बार वो आवाज़ सुनने की ज़रूरत थी, वो बस एक पहला वर्ड सुनने की ज़रूरत थी जो वो विजिटर जो वहाँ पे आया था वो बोलता, ठीक है. और आराम से जो ग्रेगोर है वो ईजिली समझ जाता कि दरवाजे पे कौन है. और दरवाजे पे एक्चुअली कौन था? मैनेजर. जिस मैनेजर से ये मिलने जाने वाला था वो मैनेजर खुद ही दरवाजे पे था. नाउ ग्रेगोर swung himself with all his might out of the bed. किसी तरह से उसने अपने आप को बेड से नीचे गिरा लिया, मतलब लिटरली गिरा ही लिया उसने खुद को, क्योंकि वो नीचे उतर सकता नहीं था. उसने अपने आप को रोल किया और वो बेड से नीचे गिर गया. देयर वॉज लाउड थर्ड. थर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ को हम लोग टर्ड कहते हैं. तो वो ज़मीन पे गिरा, एक तर्ड की आवाज़ आई, बट नॉट अ रियल क्रैश. द फॉल वॉज एब्जॉर्ब्ड समवॉट बाय द कारपेट. लेकिन एक्चुअली में बहुत तेज़ आवाज़ नहीं थी, क्योंकि जो साउंड है वो क्या हुआ, कारपेट की वजह से एब्जॉर्ब हो गया. बट देयर वॉज अ थर्ड साउंड, ठीक है, दैट समथिंग हैज़ फॉलन. But he had not held his head up with sufficient care and had hit it. लेकिन उसके सर में चोट थोड़ी सी लग गई थी, क्योंकि उसने अपने हेड को बचा नहीं पाया था. वो he turned his head irritated and in pain and rubbed it on the carpet. फिर उसने अपने सर को उठाया और उसके बाद उसको रब किया कारपेट के ऊपर, ताकि उसको दर्द जो है थोड़ी कम हो. Something has fallen in there, said the manager in the next room. और अभी जो मैनेजर जो मेन डोर से आए थे अंदर, उन्होंने भी आवाज़ सुनी और वो बोले कि कुछ तो गिरा नेक्स्ट रूम में, ठीक है. मतलब मैनेजर इज़ इन द मेन रूम, लिविंग रूम, एंड ही हैज़ हर्ड द वॉइस फ्रॉम द बेडरूम ऑफ ग्रेगोर. और उसने बोला कि जो मतलब बेडरूम में कुछ तो गिरा है. एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. एंड दिस चैप्टर इज़ बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द नोवेला. नॉवेला जैसे कि मैंने बोला स्मॉल नॉवेल, ठीक है. तो इस नॉवेल का सिर्फ एक स्टार्ट का हिस्सा है, शुरुआत का हिस्सा है. उसके बाद हाउ ग्रेगोर फेसेस हिज करेंट स्टेचर एंड हाउ ही एक्सेप्टेड टू लिव विद इट, ठीक है. सो इन दिस वे द चैप्टर इज complete. For any doubts and problems, you can ask the question in the comment section. So for now, goodbye.